السلام علیکم ویور، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی ہے؟ ٹھیک ہے، سب خیر خیریت ہے؟ آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں جی مدینہ پاک، اپنی شاپ جو تیاری شری وہ ہو چکی ہے، ابھی کرتے ہیں الوداع روم کو، ابھی چلتے ہیں نیچے کی طرف کیونکہ ہمارا ٹائم جو حرم پاک والا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ دل تو نہیں کر رہا، خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے، حرم پاک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ ہماری بس آ گئی ہے، گاڑی 2025 ماڈل ہے، نئی گاڑی ہے بالکل۔ علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی کیسی ہے؟ سر کیسے ہو؟ ٹھیک بالکل ٹھیک ہے سائیں، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے سر، الحمدللہ چنگی گل ہے سر سائیں۔ بہت سر غائب رہے ہو 2 دن سے۔ نہیں 2 دن سے نہیں سر، آج صبح سے نہیں گیا، کل تو آپ کے رات کو بھی نہیں ملے نا؟ رات کو میں چلا گیا تھا دوست کے ساتھ ایک۔ چھوڑ دو یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ جی خوبصورت سی بس، ماشاءاللہ زبردست۔ بیڈن ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، چیک کریں پہاڑ، مطلب کوئی بھی چیز نہ روڈ کے اوپر نہ آئے، انہوں نے سیفلی درمیان میں دی ہے، اس طرف بھی ہیں اس طرف دونوں طرف، کہ مطلب ابھی بھیڑ ہیں، بکری ہیں یا اونٹ ہیں یا کوئی بھی چیز ہے وہ مطلب روڈ کے اوپر نہ آئے، روڈ کے اوپر آئے گا تو ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پہاڑ ہے جی، ہر طرف پہاڑ ہی۔ آگے جی اسٹاف ہماری عوام دیکھیں جی، بالکل نیند میں فل جی۔ اس ہوٹل میں دیکھتے ہیں کچھ کھانے کو یا کیا پروگرام ہے جی۔ یہاں پراٹھا اور انڈا ملے گا 10 ریال میں، یہ بول رہا ہے 2 انڈے کے ساتھ، 2 انڈے کے ساتھ اسپیشل ابھی، لیکن اس کے ساتھ مرگینک کر کے اس کے ساتھ 8 ریال کے بعد کیا ابھی۔ یہ جی متا اس کا، سارے لوگ جا رہے ہیں مدینہ پاک، گرمی بھی کافی زیادہ ہے آج۔ سعودی عربیہ میں مہنگائی جو ہے نا وہ زیادہ ہے دبئی کی نسبت سے، بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں سمجھ آئی اس چیز کی۔ یہ چیز دبئی کے اندر آپ کو تقریباً 4 درہم کی ملتی ہے، 3 درہم کی ہے، 4 پراٹھا 1 درہم کا ملتا ہے، 1.50 کا ملتا ہے کسی کا مختلف جگہ۔ ٹائم نہیں ملا بھی، اس کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے اور اندر سے دیکھتے ہیں کہ چائے ملے گی، اگر کھل جاوے آج جو نہیں ہوں میں ذرا ایک ترتیب نہ کھو گیا نا، گل نہیں نا سمجھدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی مدینہ کی حدود کے اندر، تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر رہ چکے ہیں۔ یہ جی مدینہ پاک کے میرے خیال میں لوگوں کے گھر، خوبصورت مسجدیں ماشاءاللہ، یہ جی پورے کھجوروں کے باغ۔ مسجد قباء عالم اسلام پہلی مسجد ہے مسجد قباء مدینہ پاک کی، جو مقدس مقامات زیارت کا جو سفر ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو زیارت کے لیے آئے ہیں مسجد قباء ہے، حیثمان عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور قباء کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، بلندی۔ تقویٰ کی بنیاد پر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جب ہمارے پیارے آقا مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے نا، تو یہاں پر قباء بستی میں سب سے اونچی جگہ چنی تھی، اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھائے، اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو ہمارے پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے تیار کروایا۔ اگر صحابہ کرام اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایک ایک پتھر اٹھا کے لے کے آتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا اس مسجد کی تعمیر کے لیے 2 پتھر اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ سبحان جب اللہ۔ مسجد تیار ہو جاتی ہے، اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، کوئی صحابہ کرام آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ہمارا ادھر دل نہیں لگتا، ہمیں مکہ کی یاد آتی ہے، مکہ والے ہم سے آگے ہوں گے، وہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، سہ مروا کریں گے، وہ حج عمرے میں آگے ہوں گے، نیکیوں ثواب میں آگے ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اس بات جب پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس بار ہمارے پیارے آقا مسکرائے اور فرمایا کیا صحابہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ پریشان مت ہو۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی گھر سے باوضو ہو کر میری مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد قباء نفل ادا کرے گا، اسے ایک مقبول اور منظور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ حیثمان، یہ آپ کا فری کا بالکل عمرہ ہے، اس کا کوئی آپ نے پیسہ نہیں دیا، کوئی چارج نہیں لگایا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتا ہے آپ حاجی سفر سے آئے ہیں، تو انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، آگے انشاءاللہ مسجد قباء کے بعد پہنچے گے غزوہ خندق، اس کے بعد مسجد قبلہ تین کھجوروں والے۔ یہ جی مسجد کا اندر کا ایریا خوبصورت سا، یہ جی مسجد۔
ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی تھی. یہ جی یہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. آگے سارے نمازی نماز پڑھے نہیں تو نزدیک ہی آ کے دکھاتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت مسجد ہے اور خوشبو بھی بہت خوبصورت ہے. وادی یثرب قرآن پاک میں یثرب کے نام سے جانی جاتی ہے. مدینہ پاک وادی یثرب. یثرب کے معنی کے دکھ تکلیف بیماری، یعنی کہ دکھوں والا شہر، تکلیفوں والا شہر، بیماریوں والا شہر، اندھیروں والا شہر. یہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرتا تھا. اگر گزرتا تھا تو وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا. جب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے وادی یثرب میں تشریف فرما ہوئے، اس کا نام مدینہ المنورہ رکھ دیا گیا، مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا، روشنیوں والا شہر رکھ دیا گیا. تب سے لے کر آج تک بھی مدینہ پاک میں اندھیری رات نہیں ہوئی اور تا قیامت کبھی ہوگی بھی نہیں. تو شاہ نے یہاں پر کیا خوب لکھ دیا کہ انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا، انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا، سمندر نہ ہوتا سفینہ نہ بنتا. خدا کی قسم اگر ہمارے پیارے آقا کے قدم وادی یثرب میں نہ لگتے تو کبھی بھی یہ مدینہ نہ بنتا. جب ہمارے پیارے آقا مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے نا، تو قبا بستی میں بنو سالم کے قبیلے میں، یہاں پر قبیلے بعد ہوا کرتے تھے بنو سلمہ، بنو سالم، بنو نجار، بنو ہاشم. تو بنو سالم کے قبیلے میں سب سے جگہ اوپر چنی تھی اس مقام پر، یہ مسجد کی تعمیر کی گئی. تو ماشاءاللہ اس کی آپ کی رہنمائی میں نے پہلے کر چکا ہوں. تو ماشاءاللہ ابھی آپ آئے، ماشاءاللہ نفل ادا کیے اور آپ سب حجاج کو ایک مقبول اور منظور عمرے کا ثواب بھی مبارک ہو. اچھا میں دیکھیں میرے کے الفاظ جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ کے الفاظ جھوٹے ہو سکتے ہیں، زمین آسمان ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا کے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. جس کی مہر لگا دی گئی ہے، جس کی مہر لگ گئی ہے. ہمارا فری کا عمرہ ہو گیا نا. یہ اس میں کوئی آپ نے پیسہ وغیرہ کچھ نہیں لگایا، نہ کوئی چارجز پیسہ وغیرہ، کوئی میل نہ رکن ادا کیا، نہ حرام باندھا، نہ چکر لگا، کچھ کیا. یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. مکہ میں آپ نے کتنا پیسہ لگایا، مکہ ہے نا، حرام باندھا، چکر لگائے، صحیح مروا کیا، محنت کی، رکن ادا کیے، کتنا کچھ کیا. باوجود پیسہ لگانے کے باوجود ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہمارا عمرہ قبول ہے. ہم جانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے کہ وہ ہمارا عمرہ قبول ہے یا نہیں قبول. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ وہ بھی ہمارا عمرہ قبول ہو. ماشاءاللہ مدینہ پاک میں جتنے دن بھی یہاں پر رہے، روزہ رسول پر جائے، بار بار حاضری کے منتظر ہوں. مسجد نبی میں جائیں گے، باجماعت نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم انسان گناہگار بہت خوش نصیب ہیں. کیسے خوش نصیب ہیں؟ روزہ رسول پر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. شام سے لے کر اگلی صبح تک 70,000 فرشتے، ایک دن میں کم و بیش 1,40,000 فرشتے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جس فرشتے کی ایک بار باری ہے کہ تا قیامت دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آنی. فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم انسان گناہگار کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھے بار بار یہ موقع دیتا، بار بار یہ سعادت نصیب فرماتا. اگر رسول سے حاضر دے کر باہر نکلتے ہیں، الٹے ہاتھ پر جنت البقیع کا قبرستان آتا ہے. وہ صبح فجر اور عصر کے بعد کھلتا ہے. کسی نہ کسی خوش نصیب کا نماز جنازہ ہوتا ہے. آپ مرد حضرات اس کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں. اس میں ہمارے کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے. حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آرام فرما ہے. ہمارے پیارے آقا کی شہزادیاں ازواج محتراج آرام فرما ہے. اور ایک اہل بیت بھی آرام فرما ہے. اور ایک ایسی بھی ہستی آرام فرما ہے جنہوں نے ہمیں مدینے کا ادب سکھا دیا. وہ کون سی ہستی ہے؟ وقت کے مالک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 70 سالہ زندگی میں مدینہ پاک میں کبھی چپل ہی نہیں پہنی. دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر چلتے. پوچھا جاتا کہ اے امام مالک دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر کیوں چلتے ہو؟ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں میرے آقا کے قدم لگے ہو، ان قدموں پہ میرے قدم آ جائے، کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جائے. ایک حج کے عمرہ نے کیا، دوبارہ حج عمرے کے لیے نہیں گئے. مدینہ سے سفر کے لیے باہر جاتے تو جلدی جلدی واپس آ جاتے. پوچھا جاتا کہ اے امام مالک کیا ماجرا ہے؟ ایک حج کے عمرہ نے کیا، دوبارہ حج عمرے کے لیے نہیں گئے. مدینہ سے سفر کے لیے باہر جاتے جلدی جلدی واپس آ جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ حج عمرے کے لیے جاؤ، مدینہ سے باہر جاؤ، میری موت ہو جائے، میری وصال ہو جائے، کہیں مجھ سے جنت البقیع نہ چھوڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عزت و احترام ادب ہمارے دلوں میں بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اسمت چند دنوں کی بات ہے. کتنے دنوں کی؟
चंद दिनों की बात है, ना जाने ये दिन फिर कब आएंगे। आप मक्का में आते ना उम्रे के लिए, तो बस दिल में यही हसरत रहती है कि हम मदीना कब पहुंचेंगे। मदीना के जो प्यार है ना, ये अल्लाह की तरफ से ही है, कोई खुद की बात नहीं है। तो जब हम माशाल्लाह आते हैं ना उम्रे के लिए, तो हम बात यही करते हैं कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो बात सबसे पहले यही बात है हमारे जो ज़बान से निकलती है, यही निकलते है कि हम मदीने के लिए जा रहे हैं। तो जितने दिन में मुकीम है अदब और सबर। पंजाबी का शेर है कि या रसूल अल्लाह मेरा रूप बनी मेरा रंग बनी, मेरा रूप बनी मेरा रंग बनी, मनु यार मनोन दा टंग बनी, मेरा रूमी वर्गा इश्क बनी, मेरा रूमी वर्गा इश्क बनी, मेरे जामे वर्गी तोर बनी, पर कसम खुदा दी खाना हाँ तेरे जिया कोई होर बनी, तेरे जिया कोई होर बनी। आसमान माशाल्लाह जितने दिन में मुकीम अदब और सब्र के साथ रह जाएगा, जितना सब्र करेंगे वो भी हमारे लिए इबादत बनता चला जाएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पर पहुंचे, कोई पैसे का कमाल नहीं है, ना कोई अल्लाह का कमाल है, बुलाने वाले का कमाल है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। तो मैं ठीक है, मद के अंदर जाना मन है, ठीक है जी। हमारे सब हाजी दुबई से है, अरबी तो सबको आती है। तो आगे सामने ये हाजी मट्टी का प्लान नजर आ रहा है जी, ठीक है। जो सामने वाला बाग है, ये बाग सलमान फारसी है, जिस बाग की गुठलियां हमारे प्यारे आका ने अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से लगाई थी, और इस बगैर मतलब के गुठली के खजूर पैदा हुई थी जी। ये वो बाग है, बाग सलमान फारसी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु को आजाद करवाने के लिए बाग लगाया गया था, ठीक हो गया। आगे जो मट्टी का प्लाट है, ये खाके शिफा का मैदान है, सुना है खाके शिफा का मैदान। खाके शिफा का ये वो मैदान है जहाँ पर हमारे प्यारे आका के दौर में ऊँटों की मंडी लगा करती थी, और ये वादी बुतहान का इलाका है। वादी बुतहान ये जन्नती वादी है। आप जन्नती वादी में अभी ये आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये बस जो सारी है जन्नती वादी में फिर रही है। ये वादी बुतहान, दो मदीना पाक में वादी है, एक वादी अल अकीक और एक वादी है बुतहान। ये दोनों वादियों का जिक्र कुरान पाक में है, ठीक है। तो ये वादी बुतहान का, और इस मुकाम पर हमारे प्यारे आका के दौर में ऊँटों की मंडी लगा करती थी, और खाके शिफा का मैदान। क्यों? कि हमारे प्यारे आका ने फरमाया जब सहाबा कराम मदीना पाक में दाखिल होते थे ना, तो मतलब के चेहरे नकाब से ओढ़े होते थे। तो हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ सहाबा जब मदीना में एंटर होते हैं ना, दाखिल होते हैं, तो खाके शिफा के मैदान, इस मैदान से गुजरते हैं तो अपना चेहरे उतार लिया करो, चेहरों से नकाब उतार लिया करो। आपको नहीं पता कि मदीना की खाक में भी शिफा है, आबो हवा में भी शिफा है माशाल्लाह। तो यह है खाके शिफा का मैदान। उससे पहले इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको एक और इंशाल्लाह बहुत बड़ी ज़ियारत करवाएंगे, एक तारीखी रास्ता भी बताएंगे जिस रास्ते से हमारे प्यारे का मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी और मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तशरीफ फरमा करते। 1400 साल पुराना मंजर है, ठीक है। तो ये तारीखी रास्ता है। आसमान अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, आपको सामने जो पीछे आजी बैठे सीधे हाथ पे उल्टे आप देखे ना, सब आजी थोड़ा सा आगे आपको एक व्हाइट कलर की मस्जिद नजर आ रही होगी, छोटी सी, एक गुम्बद एक मीनार आ रही जी। ये मस्जिद अल जुमा है। कौन सी है जी? मस्जिद अल जुमा। आलमे इस्लाम का सबसे पहला खुतबा बा जमात इस मकाम पर दिया गया था, और हम मुसलमानों पर जुमा फर्ज हो गया। हमारे प्यारे आका मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी की जानब तशरीफ फरमा रहे थे, कम बेश 40 सहाबा किराम साथ थे। यहाँ पर हमारे प्यारे आका ने बा जुमा खुतबा अदा किया, और हम मुसलमानों पर जुमा फर्ज हो गया था, ठीक है। ये तारीखी रास्ता है। तारीखी रास्ते के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपकी सवारी की सुन्नत अदा हो रही है। तो हमारे प्यारे आका हर हफ्ते वाले दिन सुबह फजर की नमाज अदा करते, मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तशरीफ फरमाते। कभी कसरा उठने का नाम उठने पर आया करते, घोड़े पे आया करते या पैदल आया करते। तो माशाल्लाह आज वैसे भी आपकी सवारी की सुन्नत अदा होगी, तो माशाल्लाह सुबह कोशिश करना, एक दो दिन मुकीम में सुबह फजर की नमाज अदा करना। मस्जिद नबी के 310 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे ना, जैसे बाहर निकलेंगे तो आपने उल्टे हाथ पे आ जाना है। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही 310 नंबर गेट से बाहर निकले, उल्टे हाथ पर फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही आपको ये कुबा रोड नजर आए। ये देखिए पैदल ट्रैक आ रहा है, ठीक है। तो पैदल आने वाली सुन्नत भी यहाँ पर अदा कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करना कि एक बार तो लाजमी आइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, कुबे के लिए, मस्जिद कुबा के लिए ये कुबा रोड बोला जाता है। मस्जिद नबी के 310 नंबर गेट बता रहा हूँ आपको, सामने मस्जिद अल गमामा नजर आएगी। मस्जिद गमामा वो मस्जिद है, यहाँ पर मतलब कि हमारे प्यारे के ऊपर एक बादल का टुकड़ा छाया किया करता था, ठीक है। तो मस्जिद गमामा 10 गुंबद है, काले पत्थरों वाली मस्जिद है। तो अभी माशाल्लाह हमारा जो काफिला रवाना है वो गज़वा खंदक की जानब रवाना है। गज़वा खंदक आलमे इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग, ठीक है। यहाँ पर मुसलमानों की जो तादाद थी ना, तकरीबन 3000 का लश्कर, 1500 लेकर 3000 का लश्कर, और आगे मुकाबला 10,000 लश्कर के साथ सन 5 हिजरी को लड़ी गई, ठीक है। एक जगह को 3-4 नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम है गज़वा अहज़ाब, दूसरा नाम है सबा मसाजिद, अरबी का लफ्ज़ 7 मसाजिद यहाँ पर छोटी छोटी तुर्क दौर में महफूज की थी वो मसाजिद खैमों वाली जगह पर, ठीक है। उसके बाद आगे मैदान फतह,
जबल सला, जबल पहाड़ को बोलते हैं सलाह, यहाँ पर सलाह की गई, मशहूर क्या मस्जिद अल फतह। ठीक हो गया। इन जगहों को, एक जगह को इतनी जगहों से, इतनी मतलब के नामों से पुकारा जाता है। आपकी इसकी रहनुमाई करते जाए कि मुशरिकीन मुनाफिकीन मदीना छोड़ के चले जाते हैं, मक्का कुरैश के साथ मिलकर 10,000 का लश्कर लेकर मदीना पर हमला के लिए रवाना होते हैं। इस बात का हमारे प्यारे आका को पता चलता है। जब हमारे प्यारे आका को पता चलता है, सब सहाबा किराम को इकट्ठा करते हैं, मशवरा तलब करते हैं। मशवरा देने वाले सबसे बूढ़े और ज़हीफ सहाबी रसूल जो फारस के रहने वाले थे, जिस जगह पर अभी ऐरान है, उनकी जो उम्र आती है रवायात में 250 से लेकर 350 साल। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब रूम और फारस की जानब हमारे बड़े जंगी लड़ा करते थे ना, शहर के सामने, शहर के इर्द गिर्द गड़ा खोद लिया करते थे, खंदक खोद लिया करते थे, ताकि दुश्मन इसको पार ना कर सके। अगर पार भी करना चाहे तो इसमें इसको मारकर फेंक दिया जाए। हमारे प्यारे आका के लिए कुल थे, सब कुछ मालूम था, फिर भी मशवरा किया। कहते हैं मशवरा कर लेना चाहिए, सुन्नत है, चाहे दीवार के साथ ही क्यों ना हो। ये मशवरा कर ले, पसंद आया, कबूल किया गया। कम बेश 1000 से लेकर 1500 का लश्कर खंदक खोदने में मशगूल कर दिया जाता है। और जितना हिस्सा हमारे प्यारे आका हमारे प्यारे सहाबा किराम को देते हैं, उतना हिस्सा हमारे प्यारे आका अपने हिस्से में लेते हैं। अपने हाथों के साथ, गदालों के साथ पत्थर तोड़ना शुरू कर देते हैं, खंदक खोदना शुरू कर देते हैं। आसमान किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए, इस दीन इस्लाम के लिए। और आज हमें बैठे बैठाए इस्लाम मिल गया, जिसकी आज हमें कदर नहीं है। ये खंदक खोदने का जो क्याम चलता है, तकरीबन 28 दिन तकरीबन ये क्याम चलता है, जिनमें से जब 25 दिन गुजर जाता है, खाना पानी राशन खत्म हो जाता है। 3 दिन बगैर कुछ खाए पिए खंदक होते हैं। जब 3 दिन भी गुजर जाते हैं, कुछ सहाबा इकराम आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब हमसे और काम नहीं होता। हमने अपने पेट को तसल्ली देने के लिए पेट पर एक एक पत्थर बांधा हुआ है। यह बात सुनकर हमारे प्यारे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने सब्र की इंतहा दिखाना नहीं चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे। जब अपने पेट से, अपने दस्ते मुबारक से कपड़ा उठाया, क्या देखा तो पहले से ही 2 पत्थर बांधे हुए। रूह की आलम से हमारे प्यारे आका ने इस मकाम पर पहले से ही 2 पत्थर बांधे हुए थे। आसमान ये पत्थर जो बांधने का सारा मामला ना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे थे। और ये खंदक खोदने का क्या उन दिनों की बातें हैं कि दुनिया की जब ये कोई चीजें मशीनरी वगैरह मौजूद नहीं थी, हाथों के साथ हमारे प्यारा, इधर आप कुछ चीज खोदेंगे तो पहाड़ी या पत्थर ही नजर आएगा, ऐसा ही ना। तो भूख के आलम से, और अरब की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसा ही। तो सब आज सीधे आप देखें, ये तुर्की स्टेशन आ गया जी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने ये बनाया था तुर्की स्टेशन, ठीक है, सीधे हाथ पर आपके सब। वो ट्रेन का कुछ हिस्सा आगे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसकी आवाज पहुंची थी, बल्कि जब वो आए थे ना रोजा सूर पर हाजिरी के लिए, तो जब वापस जाने लगे तो इसको ट्रेन को स्टार्ट किया गया, तो इसकी आवाज वहां तक पहुंची थी। उन्होंने इसको बंद करवा दिया। उन्होंने बोला था कि हमारे प्यारे आका के आराम में खलल पैदा होता है, बेअदबी आती है, इसलिए उनको तब बंद कर दिया। और 120 साल तकरीबन इसको हो गए तुर्की स्टेशन को बने हुए। अच्छा जी, गाइड कर रहा था तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु खंदक का माजरा जब खोदने का था, वो देख रहे थे। उनका घर कहीं करीब होता है, वो जल्दी से अपने घर जाते हैं, अपनी अहलिया से पूछते हैं हमारे घर खाने को कुछ है। अहलिया कहती है गालबन 2.5 किलो जौ का आटा और एक छोटा सा बकरी का बच्चा, जिससे हमारे बच्चे खेलते हैं। आप बकरी के बच्चे को ज़िबा करते हैं, अपनी अहलिया से फरमाते हैं वो खाने का एहतमाम करें, मैं हमारे प्यारे आका और चंद सहाबा इकराम को खाने की दावत देकर आता हूँ। हमारे प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप और चंद सहाबा कराम हमारे घर खाने के लिए तशरीफ फरमाओ। हमारे प्यारे आका खुद तो भूखा रह सकते थे, लेकिन अपनी उम्मत को भूखा नहीं देख सकते थे। दावत का सुनते ही 3000 लश्कर को दावत दे दी जाती है। 3000 लश्कर तो खुश हो जाता है, लेकिन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो जाते, परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर जाते हैं, अपनी अहलिया सारा वाक़या रूनुमा करते हैं। आगे से अहलिया भी अमान फरोख्त थी, कहते हैं, अर्ज करती है कि आए जाबिर सवाजी सीधे पे देखेंगे रोजा सूर सामने नजर आ रहा है। जब अपनी अहलिया के पास आकर सारा वाक़या दरियाफ्त करते ना, तो आगे से अहलिया भी अमान फरोख्त थी, कहती है क्या जाबिर आप क्यों परेशान होते हैं? आप परेशान मत हो, जिसने दावत दी है वो जाने, उसका खुदा जाने, उसका रब जाने, उसका काम जाने। रवायत में आता जब खाना लाया जाता तो हमारे प्यारे आका फरमाते हैं कि जाबिर हांडी से ढक्कन मत उठाना। किसी रवायत में आता है कि अपनी काली कमली वाली चादर डाली जाती है, और किसी रवायत में आता है कि अपना लोहा पे जन्म बर्फ डाल देते हैं। अपने हाथों से दस्ते मुबारक से खाना तकसीम करना शुरू कर देते हैं। 3000 लश्कर पेट भर के खाना खाता, खाना खत्म नहीं होता। घरों में बांट दिया रहता, खाना खत्म नहीं होता। तकरीबन 3 दिन तक ये खाना चलता रहता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैरान जाते हैं, मेरे पास इतना खाना पानी राशन नहीं था। जाकर हांडी से कपड़ा या ढक्कन उठाया, क्या देखा खाना तो वैसे का वैसा ही पड़ा। तो दोबारा हमारे प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, खाना तो वैसे का वैसा ही है। तो हमारे प्यारे आका फरमाते हैं क्या जाबिर, अगर आज हांडी से तुम ढक्कन मत उठाते तो ये खाना क़यामत तक चलना था, क़यामत तक ये खाना
खत्म नहीं होना था। तो माशाल्लाह आज भी उन्हीं की बरकतें खा रहे, उनका दिया हुआ खा रहे। हम उस नबी की उम्मत में से हैं, जब भी मांगा अपनी उम्मत के लिए मांगा, ऐ अल्लाह ऐ मेरी उम्मत। कितने खुशनसीब है, खुशनसीब है ना। तो माशाल्लाह पहुंच चुके राजा खंदक के मकाम पर। अभी गाड़ी खड़ी हो रही माशाल्लाह, सब आज सीधे हाथ में देखेंगे। अभी 8-9 माह हो गए इसको बंद कर रहे हैं, मतलब ये क्या वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि उतारने नहीं देते। ये ऐसे जबल सला की पहाड़ी का बोला था आपको, ये है जबल सला की पहाड़ी। मदीना पाक के चारों अतराफ खजूरों के गले पगाते, सहाबा करम रहाश पजीर पे, कहीं से खतरा नहीं था। अगर खतरा बनता था तो इस साइड से। क्यों? अगर इस पहाड़ी के ऊपर कफार का जो खैमे, जो कफार इधर अगर पहाड़ी के ऊपर आते ना तो पीछे वो हमला कर सकते थे मदीना पाक पे। मतलब यही बात करने का है कि 1400 साल पहले मदीना पाक सिर्फ इतना था जितनी आज मस्जिद नबी है। 1400 साल पहले मदीना पाक इतना था, ठीक है। इस पहाड़ी पर है, यहाँ पर आकर जब खतरा था तो इस पहाड़ी के यहाँ पर सलाह की, मशवरा किया। मशवरे के तहत यहाँ पर खंदक खोदी गई। ये खजूरों के पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर पहले खंदक खोदी गई थी। जबल सला से लेकर सामने जबल उहद का पहाड़ नजर आ रहा है। ये आगे इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जन्नती पहाड़ है, दूसरी जंग वहां पर लड़ी गई थी, ठीक है। यहाँ से लेकर वहां तक खंदक खोदी गई। वो मस्जिद नजर आ रही है जी, जामिया खंदक के नाम की मस्जिद है। यहाँ पर 2 खेमे, जो सबा मसाजिद आपको बताए थे ना, 2 खेमे थे। एक खेमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का, दूसरा खेमा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का। वो दोनों खेमे शहीद करके बड़ी नमाज के लिए, अभी फजर नमाज के लिए ये मस्जिद बनाई, ठीक है। उस जगह मुसलमानों की तादाद तशरीफ फरमा थी। दरमियान में खंदक खोदी गई और यहाँ पर कफार के खेमे लगे हुए थे उल्टे साइड पे, आपके उल्टे साइड पे जहाँ पे बस वगैरह खड़ी हुई ना, ये सारे यहाँ जो मक्का कफार आया था, यहाँ पर उनके काफरों के खेमे लगे हुए थे। 10,000 का जो लश्कर था, ठीक है। तो ये जो खंदक खोदी गई तकरीबन 9 गज गहराई में, तकरीबन 9 गज चौड़ाई में और 2.5 से लेकर 3.5 किलोमीटर लंबाई। कितने जी? तकरीबन 9 गज गहराई, 9 गज चौड़ाई और 2.5 से लेकर 3.5 किलोमीटर लंबाई। आसान लफ्जों में बोला जाए कि एक फर्द अंदर गिर जाए वो खुद ब खुद बाहर नहीं निकल सकता था, और एक अरबी घोड़ा भी इसको पार नहीं कर सकता था, ठीक है। और 2.5 से लेकर 3.5 किलोमीटर की लंबाई बताई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 7 खेमे किसके? पहला खेमा मस्जिद अल फतह। मस्जिद अल फतह वो खेमा है जहाँ पर हमारे प्यारे आका जंग के दौरान तशरीफ फरमाते, और यहाँ पर बैठकर हमारे प्यारे आका ने जंग की फतह के लिए 3 दिन दुआ की थी। सोमवार, मंगल, बुध दुआ कबूल हुई। तेज आंधी चली, तेज तूफान चला, कफार के खेमे उखड़ के, घोड़े भाग के, निजाम दरम बरम हो गया। कफार था जो लश्कर वो भाग खड़ा हुआ। उन्हें पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर अज़ाब नाज़िल हो गया, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है मस्जिद अल फतह, और कुरान पाक की सूरत अल अहज़ाब में इसका जिक्र भी है, ठीक है। दूसरा खेमा यहाँ पर खेमा आता है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला का, जिन्होंने मशवरा दिया था खंदक खोदने का। और तीसरा और चौथा खेमा अभी पहले बनाया गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का, ठीक है। और 5वां खेमा यहाँ पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का, और 6वां खेमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का, और 7वां खेमा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खेमा, ठीक है। ये 7 खेमे जो सबा मसाजिद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। टोले पे खड़े हुए वो आपको एक छोटी सी मस्जिद नजर आ रही है जी, वो है मस्जिद अल फतह। यहाँ पर बैठकर हमारे प्यारे आका ने जंग की फतह के लिए दुआ किए थे 3 दिन, सोमवार, मंगल, बुध। उसके बाद वो दूसरा कोना, पीछे वाला कोना देखेंगे, वो सामने देखिए एक और आपको मतलब कि आपको कमरा नुमा छोटा सा खेमा नजर आ रहा है पहाड़ी के, वो है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला खेमा, ठीक है। बाकी ये नीचे बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं, ठीक हो गया। वो है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का खेमा, ठीक है जी। ये हाजी तकरीबन जो पैदल आते हैं या मकामी लोग ज़ियारत के लिए वो आते हैं, या मतलब कि जो इधर रहते हैं उम्रे के लिए आए हुए ना, ये 316 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं, फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, सामने ये पहाड़ी नजर आती है, ठीक है। ये पैदल हाजी आते हैं ज़्यादातर, नाम की मस्जिद है, ठीक है। ये अभी बनाई है फर्ज नमाज के लिए। तो माशाल्लाह ये ज़ियारत हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमारा जो काफिला पहुंचने वाला है वो मस्जिद अल क़िबलतैन। मस्जिद अल क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पर हमारा किबला रुख तब्दील हुआ था। इसके 2 ही गुंबद है, 2 ही मीनार है, 2 किबलों वाली मस्जिद इसको बोला जाता है। हमारा अव्वल किबला मस्जिद अक्सा, फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। फलस्तीन की जानब नमाज पढ़ते पढ़ाते तब फलस्तीन वाले भी ताना दिया करते थे, हो तो मुसलमान लेकिन किबला तो हमारा इस्तेमाल करते हो। जब भी इस बात का हमारे प्यारे आंखों को पता चलता ना तो आंखों में आंसू आ जाते। जब भी नमाज पढ़ते, जब भी नमाज पढ़ाते, आसमान की जानब चेहरा मुबारक उठा लेते, हाथ मुबारक उठा लेते, दिल ही दिल में मन में ख्याल करते, या अल्लाह अगर हमारा किबला हो तो खाना काबा हो, हजरत इब्राहिम ने सलाम वाला हो, जिन्होंने अपने हाथों से तैयार किया, बैतुल्लाह हो, अल्लाह का प्यारा घर हो। ऐसा रवायत में आता है कि यहाँ पर ना एक सहाबा औरतें बीमार जाती है, हमारे प्यारे आका उनकी तीमारदारी के लिए उनका हाल चाल पूछने के लिए आते हैं। यहाँ पर वक्त जोहर या असर हो जाता है।
किसी रवायत में वक्त जोहर का जिक्र है और किसी रवायत में वक्त असर का जिक्र है। जो ज़्यादा जिक्र आता है वो वक्त असर का जिक्र आता है। तो 4 कान नमाज फर्ज थी, 2 पढ़ा चुके थे, 2 बाकी थी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाज़िल होती है। कुरान पाक की सूरत अल-बकरा आयत नंबर 144 पारा नंबर 2। उसका मफ़हूम यूं है, क्या मेरे प्यारे महबूब आपका बार बार आसमान की जानब चेहरा मुबारक उठाना, हाथ मुबारक बढ़ाना, दिन ही दिन में मन ही मन में ख्याल करना हमें पसंद आ गया। अपना किबला रुख तब्दील कर ले उस जानब जिस जानब आपका दिल चाहता है, जिस जानब आपका कल्ब चाहता है, मस्जिद हराम की जानब। नोट कर लें, सफ़ों को चीरते हमारा किबला रुख तब्दील हुआ। पहली सफ़ को आखिरी सफ़ में तब्दील कर दिया गया और आखिरी सफ़ को पहली सफ़ में तब्दील कर दिया गया। जब नमाज मुकम्मल हुई, हमारे प्यारे आका ने देखा कि पीछे सहाबा किराम नमाज अदा कर रहे होते। यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं घूमी थी, ना ही कोई सफ़े घूमी थी। जब वही नाज़िल हुई थी तो हमारे प्यारे आका ने नमाज की हालत में अपना किबला रुख तब्दील किया था। जैसे ही हमारे प्यारे आका ने किबला रुख तब्दील किया, पीछे कोई सोचे समझे 10 सहाबा किराम ने किबला रुख तब्दील कर लिया। नमाज मुकम्मल होती है, हमारे प्यारे आका पूछते हैं, सहाबा मुझ पर तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाज़िल हुई, मैंने अपना किबला रुख तब्दील किया, आपने अपना किबला क्यों तब्दील किया? तो से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें वाहिदा और लाशिकारा के बारे में बताने वाला कौन है? आप ही हैं। हमारे खातमुन नबीन कौन है? आप ही हैं। हमारा किबला भी आप है, काबा भी आप है। जिस जानब आप किबला रुख करके नमाज अदा कराएंगे वही हमारा किबला होगा। ये मोहब्बत की चाह देखी और फिर से वही नाज़िल हुई और 10 सहाबा इकराम को इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई दी। अशरा मुबशरा, जो अशरा मुबशरा के लक़ब से जाने जाते हैं, जिसमें हमारे पहले 4 खुलफाए राशिदीन भी शामिल है। तो माशाअल्लाह यहाँ पर भी शायर ने खूब लिख दिया है कि अबू बकर की सदाकत भी है मदीने की गली में, अबू बकर की सदाकत भी है मदीने की गली में, उमर की अदालत भी है मदीने की गली में, उस्मान की सखावत भी है मदीने की गली में, अली की शुजाअत भी है मदीने की गली में। अरे तो क्यों ढूंढता है खुदा को इधर उधर, अरे तो क्यों ढूंढता है खुदा को इधर उधर, खुदा की रहमत भी है मदीने की गली में। तो माशाल्लाह अभी पहुंच चुके मस्जिद किबला है। तो यहाँ पर आपने पहले की तरह नफल अदा करने, दोहर का नमाज तहियतुल मस्जिद किबलतैन और दोहर का नमाज शुक्राने की अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करेंगे। 20-25 मिनट का हमारे पास इधर टाइम होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे पहुँचेंगे खजूरों वाले बागे ओहद, बागे मदीना। बागे ओहद इसलिए बोला जाता है कि ओहद के दामन में, और बागे मदीना इसलिए बोला जाता है कि ये मदीना की हद के अंदर है। ठीक है, वहाँ पर खजूरें जैसे कि मक्का का तबर है कि आप जमजम का पानी जो भूखों के लिए, किसान बीमारों के लिए शिफा है। आप जमजम के पानी को पीना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। अगर हजरत बरी नजर से आप जमजम के पानी को देखें ना तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। उसके बाद आ जाते हैं जी मदीना में, यहाँ पर आके लेके जाते हैं खजूरें, अजवा, अंबर, बरनी, ये 3 खजूरें हदीस की रोशनी से। मस्जिद देख के बुलाते हैं, नीचे से रोड है, ऊपर मस्जिद है। पहुंच चुके हैं जी मस्जिद वाले ऊपर वाले एरिए में। माशाल्लाह ये है जी मस्जिद, माशाल्लाह। गनी रजी अल्लाह ताला की नस्ल वाला भी बात कह सकते हैं, क्योंकि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने यहूदियों से आधा कुआं खरीदा था, इस्लाम की राह में वक़्फ़ किया, और तो बाद में वो पूरा कुआं खरीदा और इस्लाम की राह में वक़्फ़ किया, और उस कुएं का पानी इन्हीं बागों को, इन्हीं जगह को, इन्हीं मकामात को दिया जाता। ठीक है, जगह वही, मकामात वही, लेकिन चीज़ें आगे निस्बत दर निस्बत मतलब नस्ल दर नस्ल चलती जा रही। तो इंशाल्लाह सब जी नीचे उतरेंगे, फिर सामने जाएंगे इंशाल्लाह। 20-25 मिनट का हमारे पास टाइम होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ सारी मुख्तलिफ स्टॉल है, जैसे कि दुबई के अंदर खजूर होती है, लेकिन इनकी प्राइस थोड़ी कम होती है। बिना दिल नहीं मुतमिन हो रहा, देखेंगे मदीना पाक जाके अंदर से जा कैसे लेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इधर अजवा मुख्तलिफ किस्म की खजूर है। ये हैं ये खजूरों के बागात, इधर से खजूरें उतारते हैं, लेकिन इधर से नहीं आती है, बाहर से आती है खजूरें, सिर्फ नाम बने हुए हैं बस, दुकान अंदर खजूरों को बगा कहते हैं। हिजरी को जंग लड़ी गई, सन 2 हिजरी को जंग पहली लड़ी गई, ग़ज़वा बदर का मकाम। वहाँ पर टोटल 313 सहाबा इकराम, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313, और आगे मुकाबला 1000 लश्कर के साथ। पहली जंग का बदला लेने के लिए दूसरी जंग लड़ी गई, ग़ज़वा उहद का मकाम, 1 साल बाद, सन 3 हिजरी को। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 का लश्कर, और आगे मुकाबला 3000 लश्कर के साथ। सन 5 हिजरी को ग़ज़वा खंदक लड़ी थी,
सवा मसाइल जो भी ज़्यादा हमने माशाल्लाह मुकम्मल की। हस्बैंड गज़वा बदर के मकाम पर टोटल 313 सहाबा इकराम और हमारे प्यारे आका ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह ये है मेरी मुट्ठी भर जमा पूंजी, अगर आप यहाँ पर ये भी शहीद हो गए तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने गायबी से फरिश्ते नाज़िल किए, पत्थर का पहाड़ फरिश्तों के नूर से रेजा रेजा हो गया, जबले मलाइका का पहाड़, रेत का पहाड़, सफेद रंग का पहाड़ आज भी वहाँ पर वैसे का वैसा ही है। हस्बैंड वहाँ पर अबू सफियान को शिकस्त हुई थी। अबू सफियान की बेगम हिंदा नामी औरत जिसने अपने बाप का, भाई का, चचा का बदला लेने के लिए ये जंग रखी, उत्तबा की बेटी थी। उस मकाम पर हज़रत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तबा को जहान में वासल किया था। वहाँ पर कफार के 70 कमांडर जहान में वासल किए, 70 जिनमें अबू जहल, उत्तबा, शेबा, वलीद, उमैया बिन खलफ, उतैबा, शेबा, अबू लहब, ये सब बड़े बड़े उनके कमांडर आते हैं। हस्बैंड एक जंग हारने का गम गुस्सा, दूसरा उसके बाप को, भाई को, चचा को कत्ल करने का गम गुस्सा। एक साल में बहुत बड़ी तैयारी की गई और एक वहशी बिन अरफ नामी गुलाम तैयार किया गया। उन्हें हुक्म दिया गया इस मकाम पर हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाए। आसमान इस मकाम पर ऐसा किया गया, हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। यकीन आया, कलेजा चाह करके निकाला गया, चबाना चाहा लेकिन चबा ना सके, फिर भी यकीन आया। जिस्म मुबारक के अज़ा काट गए, होठ मुबारक काट गए, कान मुबारक काट गए, आंखें मुबारक निकाले गई, जिस्म के 11 अज़ा काट कर हाथ बनाकर गले में डाला गया। ये मकाम हमारे लिए कितना मकाम इबरत है, हमारे लिए, हमारे दीन इस्लाम के लिए कितनी कितनी बड़ी जंगें लड़ी गई, कितनी कितनी बड़ी शहादतें, कैसे हम तक ये दीन इस्लाम पहुंच जाए, इस मकाम पर हमें पता चलता है। वो कहते हैं कि बना बनाए खेल खेलने का क्या मजा, मजा तब है खेल बनाकर खेला जाए। तो इस बार इस मकाम पर हमें पता चलता है कि कैसे हम तक ये दीन इस्लाम पहुंचा। इस मकाम पर हमारे प्यारे आका सबसे ज्यादा रोए, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक भी बीत चुकी थी। दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे बहना शुरू हो गए थे। जब मुसलमान हो जाते हैं ना, बाद में मुसलमान हो जाते तो हमारे प्यारे आका फरमाते हैं कि सहाबा हिंद और वहशी को कहा मेरे सामने मत बैठा करे, मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं, लाडले चचा जान, चहेते चचा जान। मैंने पहले बताया कि मदीना पाक में सबसे आला और अफजल ज़ियारत रोज़ा रसूल। उसके बाद सुन्नत के मुताबिक 4 ज़ियारत आती है, बहुत कम हाजियों को पता होगा। सुन्नत के मुताबिक कितनी ज़ियारत आती है? 4। सबसे आला और अफजल ज़ियारत है रोज़ा रसूल। ऐसा ही 4 ज़ियारत आती है सुन्नत के मुताबिक। पहली ज़ियारत आती है रियाजुल जन्ना, नफल अदा करने के लिए आपको परमिट बनाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ हाजी ने बनाया भी होगा। उसके बाद दूसरी ज़ियारत आती है जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, मैंने आपकी रहनुमाई भी की है, 365 नंबर गेट से इसकी एंट्री होती है। उसके बाद तीसरी ज़ियारत आती है मस्जिद कुबा सुन्नत के मुताबिक, और चौथी ज़ियारत आती है सईद शुहदा का मकाम, जिस जगह पर भी हमारा काफिला रवाना है। सुन्नत के मुताबिक चौथी ज़ियारत ये है, ठीक है। अगर मैंने पहले बताया कि रोज़ा रसूल के बाद कोई दूसरी मदीना पाक में अफजल ज़ियारत है तो वो ये वाला मकाम है, और हमारे प्यारे आका के रज़ाई भाई भी है, ठीक है। तो इधर इंशाल्लाह पहुंचेंगे, मैं आप सब हाजियों के आप साथ जाऊंगा, आपको इंशाल्लाह मज़ारात की निशानी करवाएंगे, कौन से सहाबा का मकाम पे आराम फरमाएं, इंशाल्लाह सलाह पेश कीजिएगा, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद पहाड़ी छोटा सा दरा, ठीक है। तो वैसे भी उलमा कराम का लिखना है कि ऊपर जाना बेअदबी के ज़िम्मे में आता है। क्यों आता है ये भी आपकी रहनुमाई कर देते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी से दरे के ऊपर हमारे 10 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनका खून मुबारक गिरा है। हाजी ऊपर जाते हैं तस्वीरें वीडियो लेने के लिए तो बेअदबी के ज़िम्मे में आता है। और ये भी हाजियों के ज़हन में सवाल होगा कि नीचे भी सहाबा कराम शहीद हुए, नीचे क्यों चल रहे हैं, लेकिन नीचे वाली जगह वो सारी तब्दील हो चुकी है। ये देखिए कितना माहौल चेंज हो गया सारा कुछ, लेकिन ये तरह ये पहाड़ी है, ये वैसे का वैसा ही है, इसको चेंज नहीं किया गया। बताया जाता है कि ये वाला जिसमें कुछ हाजी चले हुए, बताया जाता है कि ये दरा ये पहाड़ी वैसे का वैसा ही, इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। तो कोई खास अमल ऊपर जाने के लिए नहीं है, सिर्फ हाजी वीडियो तस्वीरें लेने के लिए जाते हैं। हम इसलिए रोकते हैं कि कहीं बेअदबी के ज़िम्मे में ना आ जाए, ठीक है जी। तो अभी इंशाल्लाह गाड़ी खड़ी हो रही है, आपको इंशाल्लाह ये सामने उहद का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है, सोने का पहाड़ जो कहलाया जाता है, इंशाल्लाह इसकी आपकी रहनुमाई करेंगे। उधर जाएंगे एक साथ ग्रुप में, आपको इंशाल्लाह मज़ारात की इंशाल्लाह निशानी करवाएंगे, बताएंगे कि कुफार के कैमरे किस साइड पे लगे हुए थे, किस साइड से बार बार हमला हो रहा था, सारा इंशाल्लाह आपको फिर इंशाल्लाह 2-4 मिनट उधर गाइड करके इंशाल्लाह मज़ारात की निशानी करवा देंगे, ठीक है। आपने सलाम पेश करना है, आपने मुझसे दुआ करनी है इंशाल्लाह, उसके बाद हमारी वापसी के लिए रवानगी हो जाएगी, ठीक है जी। अभी गाड़ी खड़ी हो रही है, पहाड़ है जी सामने, जबले उहद का पहाड़ है, जबले पहाड़ है, सोने का पहाड़ है। वैसे बार ये 3 से 3.5 किलोमीटर चौड़ा और 7 से 7.5 किलोमीटर लंबा है ये वाला पहाड़।
कितना 3 से 3.5 किलोमीटर चौड़ा, 7 से 7.5 किलोमीटर लंबा। और ये भी बताया जाता है कि अगर ऊपर सेटेलाइट से इसके तस्वीर ली जाए तो लफ्ज़ मोहम्मद का अक्स नजर आता है। 160 क्या था जी, लफ्ज़ मोहम्मद का अक्स है। हदीस पाक का मफहूम है, हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है तो ओहद से मोहब्बत करता है। ओहद फिर जन्ना, ओहद जन्नती पहाड़ रोज़े महाशर, जन्नतियों के इस्तकबाल के लिए जन्नत के किसी और दरवाज़ों में से खड़ा एक दरवाजे पर जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा, ये वाला पहाड़। और हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि रोज़े महाशर ये मेरे साथ जन्नत में होगा। बसवार और क़यामत तक नाम भी उनके गूंजेंगे जिन्हें हमारे प्यारे आका के साथ शक्कर का पहाड़ है, नाम गूंज रहा है ना, सोने का पहाड़ है। इस तो सहाबी पहाड़ भी बोल सकते हैं ना, बोल नहीं सकते हैं सहाबी पहाड़। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ ने हमारे प्यारे आका के साथ हम कलाम हुए, हमारे प्यारे आका की इस पहाड़ ने ज़ियारत की है। ये वो पहाड़ है जब हमारे प्यारे आका अपने चचा अपने शोहदा को उठा के जंतल बकी की जन्म लेके जा रहे थे ना, तो ये वो वाला पहाड़ है जो पीछे चलना शुरू हो गया था। इस पहाड़ को चलने की सादत मिल गई। हमारे प्यारे आका इस पहाड़ पर जब चढ़े ना, तो हमारे प्यारे आका की खुशी में, अपने ऊपर आने की खुशी में कि ये इतना खुश हुआ कि जैसे जल्जला आता ना, इसे ये काफिला शुरू हो गया था। इस पहाड़ को बोलने की सादत मिल गई। हमारे प्यारे आका ने ठोकर मुबारक लगाई, फिर जाकर ठहरा, फिर जाकर रुका। हमारे प्यारे आका ने पूछा क्या हो, क्या माजरा है? तुम्हें नहीं पता तुम पर एक सदीक का नबी और 2 शहीद है? सवाल से करता है, एक नबी हमारे प्यारे आका और एक सदीक, हज़रत का सदीक और 2 शहीद है, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बाद में दोनों सहाबी शहीद हुए। तो आप सरकार ने इधर ही बता दिया था। तो आपको नहीं पता कि एक सदीक, एक नबी और 2 शहीद हैं? दोनों कहता है यार सुना, आपके प्यारे चचा आपके शोहदा मेरे दामन में शहीद हुए, इन्हें मेरे दामन में मदफन करो या मुझे भी इनके साथ जन्नतुल बकी ले चलो। हमारे प्यारे आका ने हुक्म दिया कि मैं अपने चचा को, अपने शोहदा को तेरे दामन में मदफन करता हूँ और ये फरमाता हूँ कि तुम जन्नतुल बकी नहीं, एक दिन खुद हरम के हद चल कर तुम्हारे पास आएगी। और मैंने पहले भी बताया कि जब गज़वा उहद के खंदक के मुकाबले खड़े हुए थे, मैंने आपको बताया था कि 14 साल पहले मदीना पाक से इतने मुकाम पे था जितने मुकाम पे आज मस्जिद नबी है। और आज माशाअल्लाह देख लो कि मस्जिद नबी कितनी बड़ी हुई है और आगे तो मदीना पाक खराब हो गया। ये देखिए रहाशी वगैरह भी यहाँ तक पहुँच चुकी है। आने वाले सालों में ये हद भी मुकम्मल हो जाएगी। ईद नमाज जब इधर होती है ना, ईद की नमाज, ये सामने 2-10 मज़ाया मॉल है, तो यहाँ तक सफेद बिछी होती है। आने वाले सालों में यही भी हरम की जो हद है ये मुकम्मल पहुँचेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। उसके बाद जब इसका बदलतान आ चुकी, 5, 6, 7 साल पहले आ चुका है तब, और अभी जाके देखेगा कि अभी वो कसीर हो रहा है, हो भी चुका है और भी हो रहा है। और आने वाले सालों में वो कोना और ये कोना आगे वाले जो तो गुजरा कब्रिस्तान ओहद का वो पहाड़ इस हिस्से से बिल्कुल कम है, तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और ये वो पहाड़ है जब आप सरकार ने इस पहाड़ को टेक लगाई थी तो ये पहाड़ खुद ब खुद फट गया था और आप सरकार को अपने दामन में समेट लिया और इतना नरम हो गया कि जैसे मोम होता है। ये वो पहाड़ जब आप सरकार ने इस पहाड़ को टेक लगाई, आराम फरमाओगे तो सर मुबारक रखा, सर मुबारक का निशान बन गया पहाड़ के साथ। कैसे कि ये मोम की तरह इतना नरम हो गया। आप सरकार ने इस पहाड़ को जब हाथ मुबारक रखा तो हाथ मुबारक का निशान बन गया। क्यों? कि ये मोम की तरह नरम हो गया। इसको बोलते क्या गारे खुशबू, क्या बोलते हैं गारे खुशबू, इसलिए बोलते हैं कि इस मकाम पर हमारे प्यारे आके के दांत मुबारक भी शहीद हुए। बताया जाता है कि इसी मकाम पर इसी जगह पर रखी गई। और गारे खुशबू इसलिए बोला जाता है कि जैसे 1400 साल पहले यहाँ उस गार से खुशबू आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उस मकाम से खुशबू आती है, सारे खुशबू। ठीक है, तो ये सारा ओहद का पहाड़ है। इंशाल्लाह मैं आपको निशानदेही भी करवा देता हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मुकम्मल कहते हैं ना, अब आज पीछे हटेंगे तो वो मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह वो हिस्सा आपको लाजमी दिखा दूँगा। ये मस्जिद किसके नाम पर? क्या मस्जिद जामिया ओहद के नाम की ये मस्जिद बनी है, मस्जिद नमाज के लिए बनी है। अभी चंद साल हुए, ये तकरीबन कोरोना के दौरान या उससे पहले ये शुरू हुई है, तो कोरोना के बाद ये तैयार है। ठीक है, ये अभी मस्जिद के चंद साल हो गए। उसके बाद ये है जबल रमात की पहाड़ी, पीरों वाली पहाड़ी। ये पीछे आपको एरिया सारा नजर आ रहा है, वादी जुर्फ का एरिया। कौन सा? जो मक्का कुमार आए थे इधर उनके कैमरे लगे थे, मुसलमान यहाँ पर तशरीफ फरमा जी इस साइड में, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये बताया था। ठीक है, तो साहबा ये सारा एरिया जहाँ पे ये मुसलमान थे। और यहाँ पर मतलब कि पहले जब जंगें होती थी तो इस बात पर तय किया जाता है कि जंग कहाँ पे लड़ी जाएगी। ठीक है, तो 40 साहबा कराम इधर से नीचे आए थे, तो पीछे से खालिद बिन वलीद ने दोबारा हमला किया था इस पहाड़ के ऊपर से चक्कर लगा के। मैं बता रहा कि पहाड़ के ऊपर से जब चक्कर लगा के इन्होंने पीछे से हमला किया, 10 उसरे के ऊपर 40 नीचे, जो इसलिए नुकसान हुआ कि जो नीचे 40 आए थे उनके पास वो तीर अंदाज थे, वो निहत्ते थे। फिर वो अपनी चीज़ें वगैरह जो भी तीर अंदाजी वाली सारा सामान छोड़ दिया, उन्होंने निहत्ते नीचे उस माल को इकट्ठा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे ये इतने सहाबा कराम शहीद।
ٹھیک ہے. یہ جنگ ہمیں پتہ میں ہے مطلب کہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا, ہمارے جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا, ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سارا میدان احد جہاں پر جنگ لڑی گئی. تو آپ کو مذاق کی شادی کروا کے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد سب آج پیچھے ہٹیے گا, آپ کو میں اس جگہ کے پیچھے. ٹھیک ہے. سب آج سامنے دیکھیں گے یہ کالے پتھروں والی بلایا پتھروں والی چھوٹی چھوٹی 4 دیواریں نظر آ رہی ہے جی. بالکل ہمارے سامنے 2 پتھر بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ 2 قبریں ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہماری سائڈ میں پہلی سائڈ پہ ہمارے ایک اٹرما کی شکل میں پتھر نظر آ رہا ہے, اور ایک آگے گلائی میں پتھر ہے. ایسے ہی جو ہماری سائڈ میں قبر ہے نا, یہ سامنے ہماری یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کی ہمارے پیارے آقا کے پیارے لاڈلے چہیتے جان ہمارے پیارے آقا کے رضائی بھائی بھی. اور جنگ میں جب حصہ لیتے تھے تو ان کو دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں, روایت میں آتا ہے. اور ایک جو تلوار کا وزن بتایا تھا کہ تقریباً 40 kg ہوتا ہے. کتنا ہی 40 کلو. دونوں ہاتھوں میں کتنا ہوگا جی 80 کلو. جن کے ہاتھ میں 80 kg کی 2 تلواریں ہوں اس کا سامنا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ جب جناب واسطے نے بھی ان کو مطلب شہید کیا تھا نا, تو وہ بھی چھپ کے ایک مطلب ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کے بیٹھ رہے تھے. اور جب وہ نیزے باز کا نیزہ لگایا گیا تو پھر بھی اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا. کچھ ٹائم وہ پیچھے بیٹھ رہے تھے, تو پھر اس نیزے کو جہاں لگا تھا, ناک پہ جہاں لگا, جب میں کتاب میں لا سکے تو شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے آگے والی قبر میں 2 صحابہ کرام آرام فرما ہے. اجتماعی طور پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن جاشر. یہ 2 صحابہ کرام ایک ہی قبر میں اجتماعی طور پر آرام فرما ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے جی؟ باقی وہ سامنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی کچی دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو. باقی 67 صحابہ کرام ایک ہی قبر میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. اس جھنڈے کے بالکل اوپر دیکھیں گے آپ کو ہلکی سی پہاڑی میں دراڑ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل ہمارا طور پہ نظر آ رہی ہے نا. اس دراڑ کے نیچے وہ مقام جو پہاڑ جو پہاڑ وہ غار ابھی ہے, لیکن ان کو اس غار کو بند کر دیا. باقی حاجی تو جاتے ہیں لیکن ایسے قافلے سے نہیں جاتے کیونکہ رہائش وغیرہ اچھی نہیں ہے. گلیوں وغیرہ جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ یہ بتاتے کہ یہ رہائش بہت ہے ہمیں لے کے جاؤ. تو گائڈ کرنے اگر گائڈ اچھا ہو تو پھر چیز نہیں بولتے. ٹھیک ہے. کہ رہائشیں وغیرہ کی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے چھوٹی گاڑی بھی آپ لازمی آتے ہیں. 2-3 حاجیوں اپنے موٹر سے ان کو بولے کہ ہم نے گاڑی وغیرہ جو پہاڑ ٹھنڈا تھا وہ رشتےدار سے خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پہاڑ ہے جو وہ ایریا میں نے بتایا کہ جو پھٹا تھا اس کو بند کیا, اور جو غار خوشبو ہے وہ اس کے بالکل ساتھ نیچے ہے. وہ الگ ہے, بند نہیں ہے. نہیں وہ غار خوشبو نہیں بند ہے. جی جی غار خوشبو بند نہیں ہے. وہ اوپر جو سامنے یہ ڈنڈا لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے یہ والا. جی جی سامنے بالکل یہ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے سامنے لگا ہوا. ہاں بلیک بورڈ اسی سیدھے ہاتھ پہ ایسے دیکھیں سامنے پہاڑی پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل اس کے نیچے وہ مقام اس کو بند کیا ہوا, لیکن اس طرف وہاں تک حاجی پہنچ جاتے ہیں. یہ کتنی دوری ہے؟ 20 منٹ لگ ہی جائیں گے, 20-25 منٹ جاتے ہیں. ایسے چکے ہیں یہ ہوٹل. یہاں لفٹ تھوڑی سی بیزی ہے, ابھی ویٹ ہو رہا ہے. پہنچ گئے ہیں جی روم میں. ابھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اور نماز مغرب پڑھتے ہیں, اور پھر مغرب عشاء انشاءاللہ مسجد نبی میں پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ نے چاہ تو. پلاؤ والی آئس کریم ملتی ہے جی, انشاءاللہ یہ بھی ٹرائی کریں گے ضرور. اس میں لوگ آ کے فوٹو بناتے ہیں جی, فریم بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آج جی ہمارا پہلا دن. انشاءاللہ کل فل ایکسپلور کریں گے, آپ کو ساری چیزوں کے متعلقہ تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دیں گے, ساتھ ساتھ شیئر کریں گے. ابھی یہ ساتھ جوتے رکھنے کے لیے بیگ سے بنے ہوئے ہیں.